Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in this video we are going to deeply discuss about a very important topic called advantages and disadvantages of direct taxes. So friends, in our previous video we have already discussed about the taxes and the meaning of taxes and the types of taxes. If you want to watch that videos too, so I'm going to share the link on the description box so you can watch from there. So now let's move further. Basically, first we need to just deal with the meaning of the taxation first. So it's a compulsory payment. There is no quid pro quo, friends. There is no returns when you pay the tax, and it's a compulsory payment to the government. In case of refusal of the taxation, you are supposed to face some punishment. Okay, and all taxes are results to sacrifices. So basically we learned about there are two types of taxes, direct and indirect, and in this video we are going to deeply discuss about the direct taxes and its advantages and disadvantages. So इससे पहले वीडियो में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो पता चल जाएंगे. बट इन शॉर्ट में ज़रूर मैं आपको बताना चाहूँगी, डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जो डायरेक्टली किसी भी पर्सन पे लीगली इम्पोज किए जाते हैं, और ये बेसिकली आपके इनकम टैक्स और आपके वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स या गिफ्ट मिला है उस पर टैक्स वगैरह चार्ज करके आपसे डायरेक्टली चार्ज कर किया जाता है. इसे हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस. तो डायरेक्ट टैक्सेस मतलब जैसे कि ईयर के एंड में आप जो भी इनकम कमाते हो उस पर जो टैक्सेस इम्पोज किया जाता है वो भी होता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस. तो चलिए पढ़ते हैं. हमारा मेन टॉपिक जो है एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एंड लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सो डायरेक्ट टैक्सेस का सबसे पहला एडवांटेज है फ्रेंड इक्विटेबल. सो इट इज़ इक्विटेबल इन नेचर. सो बेसिकली इक्विटेबल का मतलब होता है इट इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर. Okay, see, the direct taxes are progressive in nature. Progressive direct taxes can reduce income inequalities and bring about social and economic justice. Basically, it refers to the rich. It refers to rich will pay more and the poor will pay less. Equitable nature of taxation का मतलब ये होता है कि अगर आपकी इनकम ज़्यादा है so you are supposed to pay higher amount of taxation, and if you're a low income guy then you are supposed to pay the low amount of taxes. So this is what we call the equitable nature of a tax. मतलब ये एक equitable nature है जो बता रहा है कि अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो आपको ज़्यादा पे करना है और आप कम कमाते हो तो आपको कम रेट ऑफ टैक्स पे करना है. तो ये हमारा पहला एडवांटेज वाला पॉइंट है. ऐसा नहीं है कि भाई 50,000 सभी को टैक्स पे करना है irrespective of your low or high income. No, it is not like that. If you are earning more, you have to pay more amount, higher amount of tax, and if your earning is very less then you are supposed to pay low amount of taxes. Then the second one is certain. It is certain as certain. It means in case of direct taxes बेसिकली जो टैक्स पेयर होता है उसे पता होता है कि व्हाट अमाउंट दे आर सपोज टू पे, हाउ मच दे आर सपोज टू पे, एंड वेयर दे आर सपोज टू पे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द सर्टेनिटी अबाउट द टैक्सेशन, जहाँ पर टैक्स पेयर नोज अबाउट हाउ ही हैज़ टू पे द टैक्स, व्हाट अमाउंट ही हैज़ टू पे, एंड वेयर ही हैज सपोज टू गो एंड पे द taxes. Now the next one is elastic. So basically जो taxes होते हैं it is elastic in nature, and elasticity is basically refers to the flexibility. It means taxes increase with income and wealth increases. मतलब टैक्सेस जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे ही आपका इनकम एंड वेल्थ इंक्रीज होने की वजह से ही टैक्स का अमाउंट बढ़ता है. सो ये जो चेंजेस आपको दिखाई दे रही है, फ्लेक्सिबिलिटी, आपके इनकम कम होने से टैक्स कम हो जाना, इनकम ज़्यादा होने से टैक्स ज़्यादा हो जाना, इसको हम कहते हैं इलास्टिक नेचर ऑफ द टैक्सेशन. और मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू ना, सो गवर्नमेंट क्या कर देती है, रेट ऑफ टैक्सेस को हाई कर देती है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द फ्लैक्सिबल नेचर ऑफ द टैक्सेस, जहाँ पर हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं. तो हमने तीन एडवांटेजेस पढ़ा. इक्विटेबल, रिच विल पे मोर, द पुअर विल पे लेस. सर्टेन, you know very well about how much and what amount and where you're supposed to pay the tax. Elastic, it means flexibility, changeability. Now let's move further. Civic consciousness. Civic consciousness, it is nothing but the totally indicates about the public spirit. इसका मतलब होता है एवरी सिटीजन शुड नो अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द टैक्स एंड टूवर्ड्स द नेशन. ओके, टैक्स पेयर को पता होना चाहिए कि कितना इसको पे करना है, जिससे कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी के लिए यूज़फुल होता है. सो दिस इज़ अगैन, अगर इफ़ यू आर अ सिविक कॉन्शियस गाय, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू पे द अर्नेस्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन. नाउ नेक्स्ट इज
योर टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल इन नेचर. इट मीन्स जो टैक्स कलेक्शन होता है ना, ये बहुत ही कम होता है रादर द अदर टैक्स कलेक्शंस जो भी होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको टैक्स पे करना है, सो यू नो दैट कि ईयर एंड में आपको एक बार फाइल करना है रिटर्न्स एंड यू हैव टू पे द टैक्स. सो इट इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, जहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स नहीं जाता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स एंड मेरिट्स पॉइंट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फर्दर अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. द फर्स्ट डिसएडवांटेज एंड डीमेरिट वाला पॉइंट इज आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी मीन्स होता है नॉट प्लान. मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये चीज़ें कंसर्न नहीं, अच्छे तरीके से नहीं पता होती है, और बेसिकली जो भी आप पे टैक्सेस इम्पोज किया जाता है डायरेक्टली, वहाँ पर टैक्स पेयर की एबिलिटीज़ के लिए कोई भी कंसर्न नहीं होता. ठीक है. सो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ आर्बिट्ररी इन नेचर, इट इज़ नॉट प्लान, वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द एबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे इन द केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स. हमको इनकी एबिलिटी नहीं पता होती है, और इट इज़ नॉट प्लान्ड ऑल्सो. नेक्स्ट इज टैक्सेस ऑन ऑनेस्टी. इट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, टैक्सेस ऑन ऑनेस्टी का मतलब होता है कि देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी टू इवेड द टैक्स. मतलब टैक्स इवेजन होने के चांसेस है. इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी करना. फॉर एग्जाम्पल, यू आर एलिजिबल टू पे द 50,000 रुपीज़ का टैक्स, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कुछ भी अमेंडमेंट्स है आपके अकाउंटिंग में, आपके जो भी स्टेटमेंट्स है उसमें चेंजेस करके जो है उसको 50 से 30 पे ला रहे हो. सो इसे कहते हैं टैक्स इवेजन. अब डिसएडवांटेज वाला पॉइंट ये है कि देर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द टैक्स एवेजन इन केस ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस. Maybe believe that the direct taxes are a form of punishment to the honest citizen of the nation because it's progressive and it cannot be shifted in case of like a indirect taxes. मतलब indirect taxes को हम shift कर सकते हैं from manufacturer, wholesaler, retailer to the final consumer, but जो direct taxes होते हैं वो हम किसी को भी shift नहीं कर सकते. तो एक जो honest citizen होगा वो definitely ये सोचेगा कि ये जो है उनके लिए एक punishment type है. So definitely he or she will try to मेक एवेजन ऑफ द टैक्स. तो ये एक डिमेरिट वाला पॉइंट है बिकॉज ऑफ द टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर. नेक्स्ट इज इनकन्वीनियंट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ऑफ द सेवरल फॉर्मेलिटीज एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड द प्रोसीजर्स. इट इज़ क्वाइटली डिफिकल्ट ऑल्सो एंड इनकन्वीनियंट. Next, it affects willingness and ability to work and save an investment. Basically, because जो taxes का nature है progressive है, income तो बढ़ रहा है, but ज़रूरी नहीं कि investment भी बढ़ेगा और savings भी बढ़ेगी, क्योंकि जितना income बढ़ रहा है उतना ही rate of taxation भी बढ़ जाएगा. So definitely it affects योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अफेक्ट्स इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने बताया प्रोग्रेसिव. डिस्करेज कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं होगा क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्सेस भी जो है आपके कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं. ठीक है. सो नाउ दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे फ्रेंड्स. सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस. दैट्स ऑल इनफ फॉर टुडे. बाय बाय. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.